নমস্কার, দেখছেন রিপাবলিক বাংলা। হচ্ছেটাকে নিয়ে আমি সন্তু রয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আর আপনারা জানেন বিকেল 5টা মানেই হচ্ছেটা কি আর হচ্ছেটা কি বাড়ি আমি থাকি আপনাদের সঙ্গে। আমি প্রতিদিন তুলে ধরি মানুষের কথা, মানুষের না পাওয়ার কথা, ক্ষোভের কথা, মানুষের অশান্ত থাকার কথা, মানুষের খারাপ লাগার কথা। এবং কারণ এই কথাগুলোই নজর রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের, এবং রাষ্ট্র যখন নজর রাখে না, সরকার যখন নজর রাখে না, তখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব সংবাদ মাধ্যমের। সেই কাজটাই আমরা করে থাকি। আমরা বেশ কিছুদিন ধরে দেখছি আমাদের ভোট উৎসবে মেতেছে এই বাংলা, যেই বাংলা এককালীন রবীন্দ্রনাথের বাংলা, স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা। সেই বাংলায় আজ হচ্ছেটা কি তা নিয়ে বিকেল 5টায় আমি সন্তু রয়েছি। টান টান 1 ঘন্টা থাকবো আপনাদের সঙ্গে। এবং আমরা যোগাযোগ করেছিলাম তৃণমূলের সর্বস্তরে। বেলেঘাটার মাটিতে আমি যখন দাঁড়িয়ে প্রোগ্রাম করব ঠিক হচ্ছে, তখন নিউজ রুমে দাঁড়িয়ে, ফিল্ডে দাঁড়িয়ে বারে বারে যোগাযোগ করেছি তৃণমূলের সঙ্গে। তৃণমূল কোনো গেস্ট দিতে রাজি হয়নি। ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে একটা কথাই বলেছে, আমরা ব্যস্ত রয়েছি, ভোটের কাজে ব্যস্ত রয়েছি, তাই কোনো গেস্ট দেয়নি। তাই তৃণমূল ছাড়াই আজ আমাকে প্রোগ্রামটা করতে হচ্ছে। এবং তৃণমূল ছাড়াই আজ আমাকে ক্যামেরার ওপারে যে আমাদের দর্শক বন্ধু রয়েছে তাদের কাছে আমি প্রশ্ন তুলব, তাদের প্রশ্ন আমি তুলে ধরবো যে এই রাজ্যে হচ্ছেটা কি। আমার সঙ্গে রাজ রয়েছে। রাজ, তুমি জানো যে তৃণমূল যে এই নির্বাচন প্রথম দফা, দ্বিতীয় দফা, তৃতীয় দফা, চতুর্থ দফা, পঞ্চম দফা হয়ে গিয়েছে। সেই ভোটে একের পর এক অশান্তি, একের পর এক মৃত্যু। পঞ্চায়েত ভোট, লোকসভা ভোট, প্রত্যেক ভোটেই এই অশান্তি কেন হচ্ছে? দায়ী কে এবং কারণটা কি? গলদটা কোথায়? দেখো, প্রথম কথা হচ্ছে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরা যদি দেখা যায়, এই তিনটি বাম শাসিত রাজ্য, যেখানে বামপন্থা একটা জ্বর আছে, সেখানে এই বীভৎস হিংসার একটা ইতিহাস সেখানে দেখা যায়। এবং সেটাই সরকার পরিবর্তন হওয়ার পরে 2011 সাল থেকেও একই জিনিস ক্যারি ফরওয়ার্ড হচ্ছে, ক্যারি অন হচ্ছে। এবং এই লেগাসিটাকে আটকানোর জন্যই আর একটা নতুন পরিবর্তনের আশায় পশ্চিমবঙ্গ বুক বাঁধছে। সেটাই রাজ আমি একটা জিনিস জানার চেষ্টা করব। আর সম্প্রতি আমরা দেখতে পাচ্ছি সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের মহিলা বাহিনী একজনকে যে মারধর করলো, সেখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত, স্পষ্ট হুমকি যে তৃণমূলকে যদি ভোট দেওয়া না হয়, এমনটাই অভিযোগ, তৃণমূলকে যদি ভোট না দেওয়া হয় এই অবস্থা হবে। এইটা কি রাজ্যের ছবি ছিল? এইটা কি রাজ্যের ভাবধারা ছিল? এই স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা, এই রবীন্দ্রনাথের বাংলা, এই বাংলা কি আজকের বাংলা? এই রবীন্দ্রনাথই তো নিজে লিখে গেছিলেন, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির। কিন্তু আজকে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমবঙ্গ হচ্ছে চিত্ত হেতা ভয়পূর্ণ এবং নত হেতা শির। তো এই বাংলা আমাদের এক্সপেক্টেড নয়। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যেখানে তৃণমূল নেত্রীর ভাইপো পরিষ্কার উঠে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের বাংলা, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার কথা বলছেন, বঙ্গলোক সংস্কৃতির কথা বলছেন, কিন্তু সেখানে পরিস্থিতিটা অন্যরকম। আমার সঙ্গে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রীতম দা। তুমি যখন ছবিগুলো দেখলে, সুব্রত মুখোপাধ্যায় তার মহিলা বাহিনী, এমনটাই অভিযোগ, সুব্রত মুখোপাধ্যায় তার মহিলা বাহিনী গিয়েছেন, একজন মহিলাকে মারধর করেছেন। এটা কি আমাদের বাংলার ছবি হতে পারে? না, বাংলার ছবি এটা হতে পারে না। কিন্তু আমরা আপনাদের মিডিয়াদের মাধ্যমে আমরা বলতে চাই যে আমাদের এই হিপোক্রেসিগুলো বন্ধ করতে হবে। আমাদের এটাই তো বাংলার ছবি হয়ে গেছে লাস্ট 10 বছর ধরে। মাথার উপরে স্বামী বিবেকানন্দ, হ্যাঁ, স্বামী বিবেকানন্দই বলে গেছিল যে গর্ব করে বলো হিন্দু, এবং হিন্দুদের মন্ত্রে আছে যে যদি প্রতিবাদ করো, প্রতিরোধ করো, যদি দরকার পড়ে প্রতিশোধ নাও। তো আমাদের যেই অত্যাচারগুলো হচ্ছে ততটাই অত্যাচার করুন যতটা অত্যাচার আপনারা সহ্য করতে পারবেন। তার কারণ আমাদের দেবী মা দুর্গা, তার হাতে কিন্তু ত্রিশূল আছে অসুরকে বধ করার জন্য। এটা মনে রাখবেন। আমরা গণতান্ত্রিকভাবে সেই অসুরকে আগামী ভোটের মাধ্যমে আমরা বধ করতে চলেছি, এবং 2 তারিখে সোনার বাংলা তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে আবার বাংলা ঋত গৌরব ফিরিয়ে আনবো। এটা আমাদের প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমরা, তাই আমরা করতে চলেছি। একটা প্রশ্ন রয়েছে, যদিও আজকে তৃণমূল গেস্ট দেয়নি, কি কারণে আমি জানি না, বারে বারে যোগাযোগ করেছি এবং তা কমছে। এটা তো শুধু আমরা বলছি না, আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স বলছে। আমাদের উত্তরপ্রদেশ দেখে নিন, মধ্যপ্রদেশ দেখে নিন, গুজরাট দেখে নিন, এর আগে কি ছিল, এখন কি হয়েছে, আসাম, ত্রিপুরাও দেখে নিন। ওখানে কিন্তু সন্ত্রাস হয়নি। আমাদের পঞ্চায়েত ভোটে আমাদের 35% লোককে শুধুমাত্র, আমি সেদিনকেও আপনার চ্যানেলে বলেছি, শুধুমাত্র বিজেপির লোক বা অন্যান্য বিরোধী দলের লোকদের দিতে দেয়নি। বিশ্বাস করুন, অনেক আপনারা ফুটেজ খুলে পাবেন যারা তৃণমূল করে।
যেহেতু তৃণমূলের কোনো স্পোকপারসন দেওয়া হয়নি, আরো একবার দর্শকদের মনে করিয়ে দেবো আমাদের প্রোগ্রাম, হ্যাঁ 5টার প্রোগ্রামে তৃণমূল কোনো স্পোকপারসন দেয়নি। কেন দেয়নি সে কারণ আমাদের জানা নেই। আমরা যোগাযোগ করেছিলাম, বারে বারে যোগাযোগ করেছিলাম, পরেশ পালের যারা ঘনিষ্ঠ তাদেরকেও ফোন করেছিলাম, কারণ আমি আজ প্রোগ্রাম করছি বেলেঘাটার মাটিতে দাঁড়িয়ে। এমনকি তাদের পার্টি অফিস পর্যন্ত আমি গেছি, একজন সাংবাদিক হয়ে পার্টি অফিস পর্যন্ত আমি গেছি, সেখানেও আমাকে বলা হয়েছে দেওয়া হবে, গেস্ট আসছে 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 করে শেষ মুহূর্তে বলা হয় গেস্ট দেওয়া হচ্ছে না, কেউ নেই। নির্বাচনী প্রচারে সবাই ব্যস্ত, হয়তো সবাই ব্যস্ত, মানুষের কাছে আরো বেশি বেশি করে পৌঁছাতে চাইছে তৃণমূল, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু তৃণমূলের স্পোকপারসন যেহেতু নেই, অবশ্যই আমি কাউন্টার প্রশ্নটা আমাকেই করতে হচ্ছে। সেখানে আমি একটা প্রশ্ন করছি যে তৃণমূল বলছে যে বিজেপি তাদের এত পার্টি কর্মীদের সুরক্ষা দিতে পারছে না, এত পার্টি কর্মী মারা যাচ্ছে যেভাবেই মারা যাচ্ছে, এবং তারা বলছে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে মারা যাচ্ছে, যাই হোয়াট এভার, ওটা আলাদা ইস্যু। তাহলে তারা বাংলা চালাবে কি করে? অবশ্যই এই প্রশ্নের উত্তর নেব, কিন্তু এখন সময় একটা বিরতির পর ফিরে আসছি। দেখতে থাকুন রিপাবলিক বাংলা। उसी तरीके से दुर्गा मंदिर में भी अपना शीश झुकाते हैं और उनको नमन करके आशीर्वाद लेते हैं। मुझे इस धरती के लोगों के साथ जुड़ने में जहां अत्यंत हर्ष हो रहा है, वहीं क्रांतिकारी वीर हमारे जतिन दास, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने लाहौर में 63 दिनों तक अनशन करके बलिदान दिया था, शहादत दी थी, उनको भी मैं नमन करता हूं। बादल गुप्ता जी, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको भी नमन करता हूं। और जेसी बोस, हमारे जाने माने बायोलॉजिस्ट, फिजिस्ट, उनको भी हम नमन करते हैं। ऐसी पुण्य धरती के लोगों से मिलने का मुझे सौभाग्य मिला है, ये मैं अपना परम सौभाग्य मानता हूं। मित्रों, ये चुनाव की बेला है, चुनाव का समय है। आप सब लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, आप सब लोग अपने हेल्थ के प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मुंह पर मास्क लगा करके, इतनी गर्मी में आप सब लोग एकत्र हुए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। अभी मैं लॉकेट चैटर्जी का वक्तव्य सुन रहा था, भाषण सुन रहा था। वो कह रही थी कि दीदी धमका रही हैं, दीदी डरा रही हैं, ममता दीदी कार्यकर्ताओं के लिए हर तरीके की बातें कर रही हैं, और वह जिसको कहते हैं कि एक तरीके से वायलेंस के दृष्टि से उनके कार्यकर्ता लोगों को उकसा रहे हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दीदी ने हार मान ली है। 6 फेजेस में दीदी का खेला शेष हो गए, कुछ रहा नहीं, कुछ बचा नहीं। इसलिए गुस्सा, इसलिए गुस्से के साथ साथ वो अपना जो अंदर का उबाल है वो निकाल रही हैं, वो गुस्सा दिखा रही हैं। और उनके कार्यकर्ता, टीएमसी के कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे हैं, अपना पेशेंस खो बैठे हैं। वह लोग हर तरीके से लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बंगाल की प्रबुद्ध जनता को बधाई भी देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, साधुवाद भी देता हूं, जिन्होंने इन तमाम विपरीत परिस्थितियों में यह तय कर लिया है, ममता जी आपका जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का आना तय है। इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। हम जानते हैं कि अभी ममता जी इस संक्रमण काल में जिस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास कर रही हैं, गलत जानकारियां देने का प्रयास कर रही हैं, प्रदेश की मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी बोलती है वैक्सीन की कमी है। ममता जी, अगर वैक्सीन की कमी है तो हर दिन आपके आंकड़े वैक्सीन के बढ़ते कैसे चले जा रहे हैं? आपको प्रशासन में 10 साल रहने के बाद इतना भी अंदाजा नहीं है कि एक तरफ वैक्सीन की कमी बता रही है और दूसरी तरफ वैक्सीन के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, वैक्सीन लगने के आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं।
ये जनता को भ्रम में रखने का जो आपका तरीका है, अनूठा तरीका है, इसको बंगाल की जनता बखूबी पहचानती है, जानती है। मेरे को बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी ताकत लगा करके भारत की सेवा कर रहे हैं, बंगाल की सेवा कर रहे हैं, और ममता जी मुख्यमंत्रियों की बैठक में नहीं आती हैं, मुख्यमंत्रियों की बैठक में भाग नहीं लेती हैं। उनका अहम बंगाल की जनता से ज्यादा ऊंचा और बड़ा हो जाता है। उनके अहम के कारण वो बंगाल की जनता को मिलने वाले हक से उसको वंचित रखती है। अभी 17 तारीख को, 17 मार्च को पिछले मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई, ममता जी उसमें भाग उन्होंने नहीं लिया। उसमें तय होना था कि किस प्रदेश को कितना वैक्सीनेशन दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं, कैसे उसको लगाया जाएगा, कैसे उस प्रोग्राम को रोल आउट किया जाएगा। ममता जी ने उस बैठक में न आकर के बंगाल की जनता को जो निरादर हुआ है उसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए आप सब लोगों ने तय कर लिया है कि हम ममता जी को बहुत दिन तक उस कुर्सी पर रखेंगे नहीं। 2 तारीख के बाद आप बंगाल के बेटा, जो बंगाल का धरती पुत्र होगा, वह मुख्यमंत्री बनेगा, कमल खिलेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। अभी प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ जनता को मई और जून महीने के लिए 5-5 किलो अनाज देने का तय किया है। अब मैं ये चाहूंगा कि ममता जी इसकी चिंता करें, लेकिन यह बात भी पक्की है कि 2 तारीख के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री रहना नहीं है। जो नया मुख्यमंत्री आएगा वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि पिछले साल जब आपको ये डिस्ट्रीब्यूट करने का मौका मिला था तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को एक खिताब मिला था। क्या खिताब मिला था? चौल चोर। चावल की चोरी करने वाला टीएमसी का कार्यकर्ता, उनको एक खिताब मिला, चौल चोर। ये चौल चोर वालों को दोबारा नहीं मिलेगा। अब चावल लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और 5 अपने बंगाल के जो किसान हैं, जो गरीब हैं, उनको ये मिलने वाला है। 80 करोड़ जनता को मई और जून महीने में 5 किलो अनाज देने का व्यवस्था की गई है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं बांग्ला का तो भालो भाषा हो, कितना बढ़िया भाषा है, कितनी मीठी भाषा है। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि बंगाल कितनी मीठी भाषा है, लेकिन जब ममता जी बोलती हैं तो वो बंगाल की भाषा का क्या हो जाता है समझ में नहीं आता। ऐसा गुस्सा क्यों? इतना गुस्सा क्यों है आपको? ये क्यों आप गुस्सा कर रही हैं? आपकी भाषा में कोई कंट्रोल नहीं, कोई संयम नहीं। इतनी अच्छी भाषा बंगाल की, इतनी मीठी भाषा, और इतना ताप चढ़ा रहता है आपको, इतना ताप कि आप इस तरीके से गुस्सा करती हैं और भाषा का संयम खो बैठती हैं। क्या नहीं बोला आपने प्रधानमंत्री जी को? कौन सा अलंकार नहीं लगाया आपने? क्या नहीं बोला आपने गृह मंत्री जी को? आपने क्या नहीं बोला? मेरे नाम के आगे क्या क्या अलंकार नहीं लगाया आपने? यह बंगाल की भाषा है। आप बंगाल की संस्कृति की बात करते हैं, बाहरी भीतरी की बात करते हैं। अरे बंगाल के भीतरी तो हम हैं, जिन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर के सारे देश में कमल को खिलाया, कमल बढ़ाया, और कमल के साथ साथ धारा 370 को समाप्त किया। एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात को पूरा करने के लिए हमने काम किया है। इसलिए बंगाल के विचार को और बंगाल के सपूत के विचार को देश में पहुंचाने का काम हमने किया है। आप बोलते हैं भारी भीतरी, जो आप संस्कृति का परिचय देती है वो बंगाल की संस्कृति है क्या? वो बंगाल की भाषा है क्या? वो भीतरी है क्या? अरे भीतरी तो हम हैं, हम मोदी जी हैं, जो इतनी संयमित भाषा में दीदी को संबोधित करते हुए आदर पूर्वक तरीके से उनसे बातचीत करते हैं। इसलिए मित्रों, जब ये बंगाल की संस्कृति की बात आती है तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, शीर्षस्थ नेतृत्व, हमेशा बंगाल की संस्कृति, बंगाल की भाषा और बंगाल के लोगों के प्रति आस्था, इसको दिखाते हुए आगे बढ़ने का काम कर रहा है। ममता जी मां, माटी, मानुष के नाम पर आई थी। मां की जितनी चिंता की है हम सबको मालूम है।
अगर मैं ममता जी की बात करूं और मां की बात करूं, बंगाल में वो बोलती है कि मैं बंगाल की बेटी हूं, वो बोलती है कि मैं बंगाल की दीदी हूं। क्या है वो बंगाल की दीदी? सबसे ज्यादा रेप केसेस बंगाल में रिपोर्ट हो रहे हैं। क्राइम ब्यूरो का रिपोर्ट अगर नहीं कहीं से आ रहा है तो वो बंगाल से नहीं आ रहा है। सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस बंगाल में हो रहा है। सबसे ज्यादा मर्डर केसेस रिपोर्टेड बंगाल में हो रहे हैं। सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंगाल में हो रही है और सबसे ज्यादा उत्पीड़न भी महिलाओं का बंगाल में हो रहा है। स्थान स्थान पर हो रहा है। मैं बेलगछिया की बात कर रहा हूं, यहां के स्लम्स में भी बंगाल की महिलाओं के साथ बहुत छेड़छाड़ हो रही है और पुलिस हाथ पे हाथ धर करके बैठी हुई है। यह मैं बेलगछिया की बात आपको बता रहा हूं। इस तरीके का यहां बंगाल में हो रहा है। और क्या शोभा मजुमदार बंगाल की मां नहीं थी क्या? क्या शोभा मजुमदार बंगाल की बेटी नहीं थी क्या? 80 वर्ष की वृद्धा अपने बेटे को बचाते बचाते अपनी जान उनकी चली गई। उनको जान से हाथ धोना पड़ा। क्या वो बंगाल की मां नहीं थी क्या? क्या ये जो 130 हमारे कार्यकर्ता मारे गए, इनकी बहनों को ने भाई नहीं बिछड़ा क्या? और हमारी माताओं की गोद सुनी नहीं हुई क्या? ये जो आज बंगाल की बेटी और बंगाल की मां बोल रही हैं, इन्होंने महिलाओं को असुरक्षित किया है बंगाल के अंदर। 2 तारीख का इंतजार करो, उसके बाद कानून का राज होगा और महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर मैं चौल चोर की बात करूं, अम्फान चोर की बात करूं, तिरपाल चोर की बात करूं, बालू चोर की बात करूं, कोयला चोर की बात करूं, सिंडिकेट राज की बात करूं, तो हर चीज घूम करके टीएमसी के ऊपर आ जाती है। और भाईपो, कौन भूल सकता है भाईपो को? ये सारा बंगाल की सरकार समर्पित ही भाईपो को रही है। आप बताइए कि कोरोना के दौरान चावल की चोरी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए कि अम्फान के समय त्रिपाल चोरी हुई कि नहीं हुई? आप बताइए लोगों के मकान मछुआरों के बनने से उनको वंचित रखा गया कि नहीं रखा गया? हर तरीके का भ्रष्टाचार किया गया। सिंडिकेट राज, कोयला चोरी, बालू चोरी, और ये सारी चोरियों में वहां की सरकार संलिप्त हुई है। इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ऐसी सरकार, अभी इनको हाईकोर्ट ने कह दिया कि अम्फान के पैसे का हिसाब किताब दो और इनको कहा गया कि सीएजी से उसकी ऑडिट कराओ। ममता जी सुप्रीम कोर्ट में चली गई। ममता जी ऐसा भय कहनो, क्यों ये आपको डर लगता है? सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको? किस लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गई? अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। अम्फान में प्रधानमंत्री जी ने 2775 करोड़ रुपए दिए अम्फान में। लेकिन सिंडिकेट राज, ये सिंडिकेट राज और ये पीसी भाईपो का राज, ये जो राज है ये इसी तरीके से चल रहा है। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा कि बंगाल के विकास के लिए मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। स्वच्छ भारत के तहत 1,14,00,000 शौचालय बनाए गए और सारे देश में 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। इसका अर्थ क्या बना कि बंगाल में हमारी बहनें अपने दैनिक क्रिया के लिए भी घर से बाहर जाया करती थी। क्या स्थिति होगी महिलाओं की? और ये इज्जत घर बना करके, ये शौचालय बना करके, ये टॉयलेट बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है, एम्पावरमेंट किया है, उनको मुख्य धारा में जीने का अधिकार दिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। गैस के सिलेंडर्स लगभग उसमें भी 78 लाख सिलेंडर दिए गए और 8 करोड़ सिलेंडर सारे देश में दिए गए। 78 करोड़ सिलेंडर और गैस के कनेक्शन बंगाल में दिए गए। यह भी महिलाओं का, माताओं का सशक्तिकरण का तरीका है। उसी तरीके से उजाला योजना, उसमें भी एलईडी बल्ब বিরতির পর আমরা শুনছিলাম জেপি নাড্ডা একের পর এক
বান ছুড়ছিলেন, তিনি বলছিলেন এখানে বালি মাফিয়া থেকে কয়লা মাফিয়া সোনার বাংলাকে একবারে নষ্ট করে দিচ্ছে এবং তাদের অভিযোগ এতে পূর্ণ মদত রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। আমি 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 প্রীতম দা এবং রাজদার কাছে এক মিনিট করে জানার চেষ্টা করব। প্রীতম দা, আপনারা অভিযোগ করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস বাংলাকে শেষ করে দিচ্ছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস উন্নয়ন করেননি এটা বলতে পারবেন? কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি তারা স্বাস্থ্যসাথী দিয়েছে, তারা কন্যাশ্রী দিয়েছে, তারা সবুজ সাথী দিয়েছে, তারা বিভিন্ন স্কলারশিপ দিয়েছে, তাও উন্নয়ন হয়নি। জানুয়ারি মাসে পিএম কেয়ারের থেকে আমরা 5টি অক্সিজেন প্লান্ট করার জন্য টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অক্সিজেন প্লান্ট একটাও দেখতে পেরেছো? এসব মায়া কান্না ন্যাকা কান্না ওনাদেরকে আর 5 দিনের জন্য বন্ধ করতে বলুন। কি উন্নয়ন করেছে বাংলার মানুষ খুব ভালোভাবে জানে। 2 মাসের জন্য এই স্বাস্থ্যসাথীর নাটক না করলেও পারতো। ওনাদের ওয়েবসাইটে দেখাচ্ছে ম্যাক্সিমাম প্রায় 9.5 কোটি মানুষের মধ্যে 50 লাখ মানুষও পেয়েছে এবং এই স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ওনাদেরই হসপিটাল অনেক জায়গায় ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, সেটা আমরা আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমেই দেখেছি। তো ওই উন্নয়ন যেগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আমি কোভিড সামলে নিয়েছিলাম, বিজেপি এসে কোভিড বাড়িয়ে দিয়েছে, বিজেপির প্রচারের জন্যই এত কোভিড। উনি তো গোল গোল দাগ কেটে যদি ভেবে থাকেন যে উনি সামলে নিয়েছেন, আর ইমাম ভাতা দিয়ে যদি উনি ভেবে থাকেন যে উনি সামলে দিয়েছেন, তাহলে অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলো করতে পারছেন না কেন? উনি যে মেলা খেলায় যে টাকাগুলো খরচা করেছেন, সেই টাকাগুলো খরচা না করে ক্লাবকে টাকা না দিয়ে আজকে উনি কান্নাকাটি করছেন যে উনি অক্সিজেন নেই। উনি তো ওই টাকাগুলো দিয়ে অক্সিজেন প্ল্যান্ট তৈরি করতে পারতেন, সেটা করেননি কেন? একদমই সেই প্রশ্নগুলোই থাকবে এবং আজকে হাতে একদম সময় শেষ, আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে। কিন্তু চোখে চোখ রেখে আমি প্রশ্ন করব প্রতিদিন বিকেল 5টায় হচ্ছেটা কিতে, এই বাংলায় হচ্ছেটা কি, এই বাংলায় উন্নয়ন কবে হবে, এই বাংলা সোনার বাংলা কবে হবে, সেই প্রশ্নটাই আমি রাখবো। এখন এই পর্যন্তই। বাকি সব খবরের জন্য এবং অনির্বাণের অগ্নিবাণ দেখার জন্য আপনার নজর থাকুক শুধুমাত্র রিপাবলিক বাংলায়।